Hello everyone, welcome you all on this video course and my name is Vishakha Yadav and I am from the Department of Civil Engineering of ITM GOI Gwalior. And in this video course I am covering the subject which is Building Planning and Architecture, and the subject code is CE304, and this subject is useful for the civil engineering students of 3rd SEM second year students. And in this video course I am starting from the first unit, and the title of this unit is the drawing of building elements. And the topic which we are going to cover in this video, in today's video, that is the introduction of unit, and then we will discuss about the building elements like foundation, door and windows. So this is the lecture number 2. Clear? Now, so the next is content. Let's have a look about the content. The content which we are going to cover in today's video, that is, first one is prerequisite. Prerequisite means before starting the study about this unit first or this subject, some basic knowledge, like we should have some basic knowledge like unit conversion and the drawing skills, which is very essential, like conversion of units like mm, सेंटीमीटर टू mm चेंज करना या आपका मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, इज द यूनिट कन्वर्जन, मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल. So we should have knowledge, the students also have the knowledge about this basic terms. And then the next point is the learning outcomes. The effective learning outcomes means for the students, like after watching this video, the student will learn something new about the building components, like the importance of this building components and what are the different types of building components and the actual role क्या होता है building components का. like अगर foundation की बात करें तो what is the actual role of the foundation in this in a building, and what are the function of doors and windows, why they required in a building as a main components. So this is all about the learning outcomes. And then in this video, in the first unit, we will also cover the drawing of these building elements in the detail in the next upcoming videos. Clear? And then the next is introduction of the building components. different types के building components है उसके बारे में discuss करेंगे. उसके बाद जो आपके types of building components हैं, like आपका फाउंडेशन क्या है, डोर और विंडोज के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन एट द लास्ट वी हैव एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक्स, लाइक द टॉपिक्स विच वी आर कवर्ड इन दिस वीडियो, दैट इज फाउंडेशन, डोर एंड विंडोज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्डिंग एलिमेंट्स. सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स, एंड द आंसर of this exercise is submitted during the online class to the students. Clear? And the next is prerequisite. Means the student should have knowledge about some points before study about this subject or this unit, like your student should have knowledge about the unit conversion, like मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना या सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट करना. बिकॉज जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो जो हमारे पास साइजेस अवेलेबल होते हैं, लाइक डोर का या स्टेयर्स के साइजेस, विंडोज के साइज, वो अगर मीटर में है तो हम एक प्लेन जब स्मॉल पेपर पे प्लॉट करना है, उसकी ड्राइंग बनानी है, तो हमें उसको स्मॉल स्केल में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेंटीमीटर टू mm में चेंज करके आना चाहिए स्टूडेंट्स को. ठीक है, ये कुछ बेसिक सा नॉलेज है जो होना चाहिए. और जैसे हम जो मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल से, जो हम रीडिंग लेते हैं, स्केल का यूज कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा उसको मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल आना चाहिए. और थर्ड पॉइंट है लाइक स्टूडेंट शुड हैव गुड ड्राइंग स्किल्स एंड स्केच. अगर स्टूडेंट्स को ड्राइंग स्किल्स अच्छी है उनकी,
ठीक है, उनको ड्राइंग करना उनकी हॉबी है अगर, तो वो बहुत इजीली इस सब्जेक्ट को बेनिफिट ले सकते हैं इस सब्जेक्ट से। लेकिन कोई बात नहीं, जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा ड्राइंग वगैरह नहीं आती, लेकिन जब वो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स का और एक एक एलिमेंट्स का ड्राइंग का प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो वो सीख जाते हैं बनाना, है ना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर थोड़ा प्रैक्टिस लगता है इनकी ड्राइंग के लिए। जैसे अब जो हम प्लांट सेक्शन और एलिवेशन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हमें एक एक वो डिटेल ड्राइंग आना चाहिए, ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। पर थोड़ा सा अगर ड्राइंग स्किल्स है तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? so these are some of the prerequisites. Move to the next point, learning outcomes. Clear? So learning outcomes for the students, like at the end of this video lecture, the students will be able to know the following things. ठीक है, as we know हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स। हम जो यूनिट है हमारा फर्स्ट यूनिट, उसमें हम पढ़ेंगे जैसे कितने टाइप्स के बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, और उन बिल्डिंग एलिमेंट्स का अपना एक रोल होता है, उनका क्या फंक्शन है, क्या इनका इम्पोर्टेंस है, और वो कितने टाइप्स के होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं। देन हम देखेंगे कि उसका अगर हम ड्राइंग बात करें तो उसका सेक्शन, प्लान और एलिवेशन हमें ड्रॉ करना आ जाता है, ठीक है। और उसकी जो ड्राइंग है, जैसे हमें डिजाइन भी करना आता है, स्टेयर केसेस का डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर डोर का डिजाइन करना है तो वो बहुत सारे के सारे एलिमेंट्स के हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, उनकी ड्राइंग की डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब जो आपकी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज है जो कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स में जो ड्राइंग में यूज होती है, ठीक है ना, वो हमें उसका नॉलेज होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज होगी, सो दैट कि फ्यूचर में कभी कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइक या उनके खुद का ही घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्टर कुछ मिस्टेक करता है और अगर उसे इस चीज बेसिक चीजों का नॉलेज है कि जो डोर का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, या किस टाइप का डोर हम किस टाइप की बिल्डिंग्स में यूज करना सही होता है ना, विंडोज की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और स्टेयर केस का डिजाइन कि हम किस जगह के कौन सी जगह पर किस टाइप का स्टेयर केस सुटेबल होगा, है ना। तो ऐसे बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं डेली लाइफ में भी, ठीक है। चाहे अपना कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या कहीं किसी और के, अगर आप देख के उसे बता सकते हैं कि वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा, है ना। तो स्टूडेंट्स को पहले तो टर्मिनोलॉजीज आ जाएगा, दूसरा उसको नॉलेज होगा बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में, क्लियर, और उनका क्या रोल होता है बिल्डिंग के अंदर, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, वो भी उसे समझ आएगा। सो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। So first of all, we should know कि what are the components, what are the building components। अब चाहे आप building components बोलो चाहे building elements बोलो, these both terms are similar, building elements or building components। Okay, so what are the building components? As we know, the structural elements, those are the part of the buildings, clear? The structural elements, or we can say that the components, those are the part of the buildings, and these parts actually takes the load and then transfer to the other part of the building, वो भी without failure, without any failure or without any crack damages। clear? So ये क्या करते हैं, बिल्डिंग के जो आपके कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स हैं वो आपका उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जो अदर स्ट्रक्चर से लोड को लेते हैं और टू द अदर स्ट्रक्चर को, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करते हैं लोड को, ठीक है। और इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ elements or different type of components are used and which have their own purpose and which have their own functions in the building। clear? For example, हम beam use करते हैं, तो beam we provide the beam because it takes the bending forces, and columns हम use करते हैं, तो column हम क्यों use करते हैं, because these columns are the vertical members and they take the compressive load, जितना भी बिल्डिंग का compressive load आ रहा होता है वो columns लेते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास अदर भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, लाइक डोर्स। तो जो डोर्स हैं आपका, डोर्स का बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी
प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? जो आपका मूवमेंट है आउटसाइड और इनसाइड द रूम और इनसाइड द बिल्डिंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बिल्डिंग रूम्स प्रोवाइड करते हैं। एंड जो आपको नेचुरल एयर, नेचुरल सनलाइट, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। तो इनका अपना एक रोल होता है। ठीक है, अगर हम डोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे बिल्डिंग में तो क्या होगा, आएंगे जाएंगे कैसे, है ना? या फिर सेफ्टी नहीं होगी। ऐसे ही विंडोज जो होती हैं वो भी आपको क्या करती हैं, फ्रेश एयर, फ्रेश सनलाइट प्रोवाइड करती हैं, आउटसाइड व्यू प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही हर बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं, बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनका सबका अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, वो लोड को ट्रांसफर करते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग without the failure. So let's have seen the next slide. So we have two terms, like first one is the superstructure and the substructure. See, जो आपका बिल्डिंग है उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक दिस इज योर बिल्डिंग, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लाइक फर्स्ट वन इज द सुपरस्ट्रक्चर एंड अदर वन इज सबस्ट्रक्चर। क्लियर? तो जो सुपरस्ट्रक्चर है मीन्स अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राउंड लेवल। क्लियर? दिस लाइन इज शोइंग द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के अबव हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का, दैट इज कॉल्ड द सुपरस्ट्रक्चर। क्लियर? और ग्राउंड लेवल के बिलो हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग्स के लिए, वो उसमें किस सबस्ट्रक्चर में आता है वो आपका, है ना? तो वी कैन से दैट व्हाट इज द सुपरस्ट्रक्चर। अगर हम बोले कि सुपरस्ट्रक्चर क्या है, तो सुपरस्ट्रक्चर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड above the ground level. Clear? Above the ground level, it is called the superstructure. और substructures क्या होंगे, तो substructures are those structures which are constructed below the ground level. Clear? अब ये तो हो गया आपका सबस्ट्रक्चर। इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बोलता है, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर, वी कैन से बिल्डिंग। और बिल्डिंग्स क्या होती हैं, देखो बिल्डिंग्स हमने हमारी फर्स्ट जो वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें भी डिस्कस किया था कि बिल्डिंग्स आर नथिंग बट द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर which is built by the different materials for which is built with the different materials and used by the human beings for their different purposes. Like हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स यूज करते हैं फॉर देयर हेल्थ पर्पस। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो होती हैं आपके, है ना, लाइक कॉलेजेस, स्कूल, हम ह्यूमन बींग्स क्यों यूज करते हैं, स्टडी के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स है जिनका यूज डिफरेंट पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो दीज आर द सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज this diagram. Now this diagram is showing the superstructure and substructure. जैसा भी हमने समझा था कि सुपरस्ट्रक्चर और सबस्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो लाइक ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि ये समवेयर यहाँ कहीं आपका ग्राउंड लेवल आ गया। तो अब ग्राउंड लेवल से ऊपर जो भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, रूफ, है ना, वो सब किस में आ रहा है, सुपर स्ट्रक्चर में। क्लियर? एंड अगर ये ग्राउंड लेवल शो कर रहा है, दिस लाइन शोइंग द ग्राउंड लेवल, तो इसके बिलो जो भी स्ट्रक्चर है, लाइक फाउंडेशंस आ रहे हैं आपके, तो वो क्या हो जाएंगे, सब स्ट्रक्चर। क्लियर? तो दिस इज द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज different types of building components. As we know, we have different types of building components or building elements. So let's have seen, देखो ये है आपका फाउंडेशन। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, जैसे फाउंडेशन है, प्लिंथ है आपका, ठीक है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन। क्लियर? तो फाउंडेशन है, प्लिंथ है, डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स, वॉल्स हैं, कॉलम्स हैं। कॉलम क्या होते हैं आपके, वर्टिकल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉलम। ठीक है, डोर्स हैं, विंडोज हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में वी हैव बीम। ठीक है, बीम क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होता है, सनशेड है, पैरापेट वॉल्स हैं, ठीक है, रूफ है, स्टेयर केसेस हैं, लिंटल्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं। तो ये क्या है आपके डिफरेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। सो द फर्स्ट
building components or building elements is the foundation. Clear? क्या है? Foundation. तो फाउंडेशन बेसिकली क्या होता है? एज वी नो, जो एक बेसिक थिंग देखो, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जो बिल्डिंग की एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, हमेशा कैसे स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स विद द डिगिंग द ग्राउंड फॉर द फाउंडेशन. क्लियर? जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है, सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द डिगिंग द ग्राउंड और डिगिंग द ग्राउंड फॉर इट्स फाउंडेशन, जो भी बिल्डिंग बनानी है उसके लिए. क्लियर? सो वी कैन से जो फाउंडेशन है ना, इट इज द आर्टिफिशियल अरेंजमेंट, it is one of the artificial arrangement provided for transfer the load of the superstructure to the subsoil. Clear? And we can say the foundation is one of the lowermost part of the building. Okay, and it transfer the load of the building to the ground. Clear? And अगर हम बात करें इट्स मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल इवनली और सेफली. देखो, जो जैसे हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो फ्लोर्स बने हुए हैं, अलग अलग रूम्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह हर एक फ्लोर पर सेम लोड आ रहा हो. किसी रूम में कुछ इक्विपमेंट्स हैं, किसी में कुछ मशीनरी रखी हुई है, ठीक है, उसका लाइव लोड, डेड लोड डिफरेंट होते हैं. तो जो लोड आएगा आपके फाउंडेशन के ऊपर वो तो अनइवन लोड आ रहा है, लेकिन फाउंडेशन क्या करता है, इस अनइवन लोड को ट्रांसफर करता है टू द सबसॉइल इवनली, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, और जो आपका लोड को ट्रांसफर करता है उसको एक वाइडर एरिया में स्प्रेड करता है. ठीक है, जिससे क्या होगा, जो लोड की इंटेंसिटी है, जितनी इंटेंसिटी से लोड आ रहा है, ठीक है, और उसकी जो सॉइल जहाँ स्ट्राटा है जहाँ पे वो ट्रांसफर कर रहा है उसकी बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा ना हो. ठीक है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, इस वजह से वो वाइडर एरिया में स्प्रेड करता है. क्लियर? और अंडर द लेटरल लोड्स बिल्डिंग विल नॉट मूव. ठीक है, फाउंडेशन क्या प्रोवाइड करता है, जो भी लेटरल फोर्सेस आते हैं, जैसे विंड आपका ब्लो करती है, और भी अदर लेटरल फोर्सेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक की वजह से फोर्सेस डेवलप होते हैं. तो जो अर्थक्वेक जब जनरेट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी फोर्सेस, उसकी जो वेव्स क्रिएट होती है वो हर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में मानते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेव्स मूव करेंगी, ठीक है, और ऐसे आपके विंड की वजह से जो विंड प्रेशर होता है, तो अलग अलग आपके लेटरल फोर्सेस लगते रहते हैं बिल्डिंग के ऊपर, और उन फोर्सेस की वजह से आपकी बिल्डिंग ओवरटर्न ना हो, लेटरल मूव ना करे, उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसको वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फाउंडेशन. क्लियर? So this is all about the foundation. Next is, see what are the purpose of the foundation. As we have discussed कि जो foundation होता है वो क्या क्या करता है, it prevents the building from the overturning. ठीक है, ओवरटर्निंग, क्योंकि जो भी लेटरल फोर्सेस आते हैं उनसे रेजिस्ट करता है. एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सबसे पहले इसका मेन फंक्शन क्या होता है फाउंडेशन का, द मेन फंक्शन और पर्पस ऑफ फाउंडेशन इज टू ट्रांसफर द लोड, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द सबसॉइल. ठीक है, तो उस सॉइल जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज अवॉइड द अनइक्वल सेटलमेंट. ठीक है, तो ये क्या करता है, अनइक्वल सेटलमेंट को अवॉइड करता है. तो ये थे आपके पर्पस ऑफ फाउंडेशन. ठीक है, पर्पस ऑफ फाउंडेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज, पहले हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन है बेसिकली हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं फाउंडेशन को. फर्स्ट वन इज द शैलो फाउंडेशन एंड अदर वन इज डीप फाउंडेशन. तो शैलो फाउंडेशन कब यूज करते हैं, देखो शैलो फाउंडेशन जब यूज करेंगे, जैसे जो ग्राउंड लेवल है और हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, उसके ग्राउंड लेवल के जो नीचे जो भी सॉइल स्ट्रेटा प्रेजेंट है आपका, ठीक है, अगर वो सॉइल बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रांग नहीं है कि वो जो लोड हम, जो बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उसका लोड को बियर कर सके,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वो सॉइल तो अच्छी नहीं है तो हम एक्सकेवेट करना स्टार्ट करेंगे, और तब तक हम एक्सकेवेट करते जाते हैं जब तक कि हमको एक हार्ड स्ट्राटा और एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा या रॉक हमें सॉइल नहीं मिलती। तो क्या करेंगे, अब जब हम उसको एक्सकेवेट कर रहे हैं तो हम बहुत डेप्थ तक जाके एक्सकेवेट करते हैं। तो अगर जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हो रहा है ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीप फाउंडेशन। क्लियर? लाइक जस्ट अ मिनट, लाइक ये आपका फाउंडेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फाउंडेशन, कॉलम है ये, और ये आपका फाउंडेशन है। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि ये जो है टोटल क्या है आपका, ये डेप्थ, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से हमने देखा दिस इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और ये क्या है, ये इस फाउंडेशन का विड्थ है, ये वाला पोर्शन। तो हम बोले अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ देन इट इज कॉल्ड द डीप फाउंडेशन। क्लियर? अब देखो हमने बोला कि डीप फाउंडेशन तो हो गया, अब शैलो फाउंडेशन क्या होगा। तो जो शैलो फाउंडेशन होता है वो क्या होगा, अगर आपका जो ग्राउंड लेवल के जस्ट बिलो जो भी सॉइल स्ट्राटा प्रेजेंट है, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जितना भी लोड आएगा स्ट्रक्चर का उसको बियर कर सकता है एट द शैलो डेप्थ। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। जब आपका जो डेप्थ विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन की विड्थ है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द डेप्थ, देन इट इज कॉल्ड द शैलो फाउंडेशन। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। नाउ नेक्स्ट इज we have two terms actually. First one is the footing and other one is foundation. Clear? तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास टू टाइप्स की फाउंडेशन होती हैं। इन शैलो और डीप में भी अदर आगे और क्लासिफिकेशन है, डिटेल क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हमने देखा कि दो टर्म्स है हमारे पास, एक है फुटिंग और एक है फाउंडेशन। तो इनमें डिफरेंस देखना है हमें। ठीक है, जब भी हम स्टूडेंट्स किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक और जनरल क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं, लाइक फुटिंग और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स फुटिंग एंड फाउंडेशन। लाइक देखते हैं हम, फर्स्ट टर्म है हमारे पास फुटिंग। ठीक है, फुटिंग क्या होता है, सी दिस वर्ड फुटिंग एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द वर्ड फुट, FOOT फुट। ठीक है, ये जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फुट, और हमें पता है कि फुट क्या होता है, फुट इज द पार्ट ऑफ ए लेग, foot is the part of a leg and which offers the stability, which offers the stability for the entire body to stand on it, है ना। तो अगर सिमिलरली इन शैलो फाउंडेशन देखें, ठीक है, अगर शैलो फाउंडेशन की हम बात करें तो वी हैव अ स्प्रेड पोर्शन। ठीक है, वी हैव अ स्प्रेड पोर्शन which is constructed by the concrete material and which is buried at the shallow depth in the soil. So this shallow this spread portion, ठीक है, which is constructed by the concrete material is called the footing. उस पोर्शन स्प्रेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो और ये जो फुटिंग वर्ड है ये हमने कहाँ से डिराइव किया है, फ्रॉम द वर्ड फुट। क्लियर? अब देखो जो आपका फुटिंग होता है जनरली इट इज द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, फुटिंग क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फाउंडेशन एंड इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द शैलो फाउंडेशन। ठीक है, फुटिंग जो होता है नेसेसरी पार्ट होता है एक शैलो फाउंडेशन का, बिकॉज शैलो फाउंडेशन ही होता है जिसमें बॉटम में आपका स्प्रेड पोर्शन हम बनाते हैं क्योंकि उसकी विड्थ ज्यादा होती है, और वो कंक्रीट का बनाते हैं स्प्रेड पोर्शन विच इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, जो सब सॉइल से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है और लोड को ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट ट्रांसफर करता है लोड का, है ना। तो जो all the shallow foundations है हमारे पास, all the shallow foundations are simply called as the footing, all the shallow foundations are simply called as the footing. Clear? So this is all about the footing क्या होता है वो हमने देखा।
क्लियर। अब हम देखते हैं कि फाउंडेशन क्या होगा। सी इन दिस डायग्राम, ये जो फुटिंग दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक स्प्रेड पोर्शन है, ठीक है, और विच इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द सबसॉइल, जो सॉइल के कॉन्टेक्ट में है, और एज कंपेयर टू दिस वर्टिकल पोर्शन, ये जो है इसकी विड्थ ज्यादा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन की। तो जो फाउंडेशन है आपका, मीन्स फाउंडेशन क्या होगा, फाउंडेशन हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक इट इज द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज बिलो द ग्राउंड लेवल, दैट इज बिलो द ग्राउंड लेवल एंड रीचेस अप टू द सॉइल स्ट्राटा, ठीक है। तो जो ग्राउंड लेवल से लेकर सॉइल स्ट्राटा तक का जो पूरा डेप्थ होती है स्ट्रक्चर की, उसको हम बोलते हैं टोटल ओवरऑल फाउंडेशन। क्लियर। अब जो आपका देखो नेक्स्ट वीडियो है स्लाइड, देखो ये वाला, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस लाइन इज शोइंग द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से लेकर जो आपका ये पूरा पोर्शन है, ठीक है, पूरा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। क्लियर। सो दिस इज द फुटिंग एंड फाउंडेशन। और जो फाउंडेशन होता है वो हम लोग मेनली, जो आपकी डीप फाउंडेशन होती है, जो आपकी डीप फाउंडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज now we have the second important building components which is door, ठीक है। तो डोर के बारे में हम, आपने देखे हैं डोर, डिफरेंट डोर्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, अलग अलग साइजेस के, आपने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के डोर देखे होंगे। बट अब हम देखते हैं एक्चुअली में डोर क्या होता है, ठीक है। देखो डोर प्रोवाइड कैसे करोगे, जब हमारा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, जब आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल, जब आपकी वॉल बन रही हो, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में भी हमारा किसका कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वॉल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल वी प्रोवाइड अ ओपनिंग। अब जैसे हमारा बिल्डिंग बन गया, तो जो वॉल्स प्रोवाइड किए हैं उनमें हमने ऐसे ओपनिंग्स छोड़ दी, तो फिर उस ओपनिंग्स को क्या हम हमेशा खुला रखेंगे, नहीं, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, तो हम इस ओपनिंग्स को हम ऑल टाइम तो ओपन रख नहीं सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस ओपनिंग्स में हम लोग डोर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, वी फिक्स द डोर इन दैट पर्टिकुलर ओपनिंग्स। और अब ये जो डोर है ये तो फ्लेक्सिबल होता है, तो दिस डोर कैन बी केप्ट ओपन और कैन बी केप्ट क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, ठीक है। तो वो डोर्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड क्या कर सकता है, ओपन करें या क्लोज रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोवाइड करते हैं डोर्स को ओपनिंग्स में, ठीक है, वॉल ओपनिंग्स में। अब देखते हैं कि जो डोर होता है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, मेन क्यों रोल, हम उसका रोल क्या होता है मेन। तो देखो सबसे पहले तो डोर हमको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स इट गिव्स द एक्सेस टू इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग एंड इट प्रोवाइड्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बिल्डिंग एलिमेंट, जो आपके डिफरेंट रूम्स हैं बिल्डिंग के अंदर, उनका कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है। हम एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर सकते हैं, और बिल्डिंग से बाहर या बिल्डिंग के अंदर भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ डोर और गेट मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। और ये जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट इज, डोर से हमें क्या मिलता है, फ्रेश एयर एंड फ्रेश लाइट, फ्रेश सनलाइट, आपकी फ्रेश एयर एंटर कर सकती है इनटू द बिल्डिंग। क्लियर। एंड थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट गिव्स द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टू द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है हमें, तो डोर्स के थ्रू हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेन फंक्शंस और डोर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपका डोर होता है, ठीक है, मेनली इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज डोर फ्रेम एंड अदर वन इज डोर शटर, ठीक है, डोर फ्रेम एंड डोर शटर। तो देखो जो आपका डोर फ्रेम वर्ड है, ठीक है,
डोर फ्रेम क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द डोर फ्रेम, ठीक है, जिसको हिंदी में हम चौखट बोलते हैं, ठीक है, चौखट, वो इसको हम बोलते हैं, टेक्निकल टर्म क्या है इसका, डोर फ्रेम, ठीक है। अब आपका जो डोर शटर है, ये आपका डोर शटर है, ये जो दिख रहा है दैट इज योर डोर शटर, जिसको आप किवाड़ बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हम वॉल ओपनिंग्स बनाते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, जो वॉल ओपनिंग्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, डोर फ्रेम को फिक्स करा देते हैं, डोर फ्रेम को फिक्स कराते हैं विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, ठीक है, हमने फिक्स करा दिया। तो इससे क्या होगा, जो डोर है फ्यूचर में आपका निकल ना जाए या लूज ना हो जाए, इस वजह से हम पहले उसको विद द हेल्प ऑफ डोर फ्रेम फिक्स कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें डोर शटर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ तो ये था हमारा, बाकी का और जो डिटेल्स है लेके, जैसे डोर्स कितने मटेरियल्स के मिलते हैं मार्केट में, और कितने साइजेस के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, और डोर का अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो उसका प्लान, सेक्शन और एलिवेशन, ठीक है, ये सारा डिटेल स्टडी हम आपकी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज विंडो, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट इज विंडो। जैसे आपका जो, जैसे डोर का आपने प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल, सिमिलरली हम फिर से ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल हम ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ओपनिंग्स छोड़ देते हैं, और उस ओपनिंग में हम एक जगह, कुछ जगह तो हम लोग डोर के लिए छोड़ते हैं, और एक पोर्शन जो ओपनिंग होती है वो लोग विंडो के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जो विंडो होती है ऐसे ही उसमें भी सेम फ्रेम होता है विंडो का, विंडो का शटर होता है, तो उस ओपनिंग को हम हमेशा ओपन करके तो रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उस ओपनिंग्स में हम लोग विंडो को फिक्स कर देते हैं। तो अब विंडो फिक्स हो जाएगी तो हम क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं, देखो जो फ्रेश सनलाइट है हम वो ले सकते हैं बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर फ्रेश सनलाइट आ सकती है, और फ्रेश एयर का मूवमेंट भी होता है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, हमको आउटसाइड व्यू, अगर हमारे घर के बाहर की साइड अच्छी ग्रीनरी है या अच्छा व्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी विंडो हम मेनली वहां प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आउटसाइड व्यू बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो वी कैन से विंडो इज वेंटेड बैरियर, ठीक है, विंडो इज अ vented barrier which is provided in a wall openings to admit the light and the air into the structure, and it also gives the outside view, okay? So window also increases the beauty of the building, and it उसका जो appearance है, उसकी जो beauty है उसको और enhance करता है, increase करते हैं window, ठीक है। तो अभी हमने ऐसे ही विंडो भी आपकी डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती है, जैसे स्टील की विंडो है, वुडन विंडो है, ग्लास विंडो है ना, बहुत सारी डिटेल्स है, और इसकी भी अलग अलग डिजाइन के विंडोज अवेलेबल होते हैं, 2 शटर या 1 शटर, जिसे हम लीव्स बोलते हैं, और इनका जो प्लान, सेक्शन और एलिवेशन है, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है विंडोज का, ऐसे ही डोर के भी स्टैंडर्ड साइज होते हैं। और डोर का एक और बात होती है, जैसे आपके डिपेंड करता है कि बिल्डिंग किस टाइप की है, जैसे आपकी बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल है तो डोर के स्टैंडर्ड साइज कुछ डिफरेंट होते हैं, और अगर पब्लिक बिल्डिंग है तो उसके डोर के साइजेस कुछ इंक्रीज हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है। और बिल्डिंग में भी जैसे आपके जो एक्सटर्नल डोर, जो एक्सटर्नल गेट हैं, डोर हैं, और जो इंटरनल डोर्स होते हैं उनके साइज में भी डिफरेंस होता है, जो कि आपका मेन गेट होता है वो एज कम्पेयर टू द अदर गेट्स हम हमेशा उसको लार्ज रखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वास्तु भी और अकॉर्डिंग टू कोड और प्रोविजन बायलॉज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो का मेन डोर होता है उसका विड्थ हम ज्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल डोर, क्लियर। Now, so we have completed the foundation, doors and windows. Now next is, so we have completed the 3 building components in this video, and now we have some exercise for the students. देखो अभी जो भी आपने टॉपिक्स कवर सुने है ना, जैसे आपने देखा फाउंडेशन के बारे में सुपर स्ट्रक्चर क्या है, या डी फाउंडेशन क्या है, शैलो फाउंडेशन क्या है, और डोर का रोल क्या है, तो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वीडियो, और ये आपको इनके आंसर, स्टूडेंट्स को इसके आंसर लिखकर
ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस आपको सबमिट करने हैं इन क्लासेस, ठीक है। और इनका आपको मार्क्स भी मिलेंगे, मार्किंग भी होगी इनसे, ठीक है। सो यू हैव टू सबमिट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास ऑफ दिस वीडियो, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, these are the references here. So before ending this video class, I would like to summarize the whole video lecture, जिसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे। जैसे हमने देखा कि बिल्डिंग क्या होती है सबसे पहले, फिर हमने देखा कि बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, देन कितने टाइप्स के बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग कंपोनेंट्स में हमने फिर डिस्कस किया अबाउट द फाउंडेशन की, फाउंडेशन क्या है, कितने टाइप की है, शैलो और डीप हो गई। फिर हमने दो टर्म्स देखे कि फुटिंग क्या होती है, फाउंडेशन क्या होती है, क्लियर। उसके बाद हमने डोर्स को देखा, डोर के बाद विंडोज देखे। तो ये हमने 3 बिल्डिंग कंपोनेंट्स अभी कवर कर लिए। पर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट्स, लाइक आपके पैरापेट वॉल है और वॉल्स हैं, ठीक है, प्लिंथ है, डीपीसी है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू।